Hello, good morning, Vikesh. How Good are morning. you? Fine, ma'am. So tell me about yourself, Vikesh. You're currently pursuing electrical engineering in IT Kanpur, right? Yes, ma'am. So So, tell us about yourself. ma'am, like my name Ritesh, and I'm currently pursuing electrical engineering in IIT Kanpur. I took a drop because at that time my J rank was not good enough to like get a good college. So, and I was like my schooling life was a bit regular, so I wasn't able to give time for JE. So I took a drop, and then after 1 year, like I got a very prestigious college. You always wanted to come to IT Kanpur, you have told us, right? Yes, yes, ma'am. Why IIT Kanpur only? Like, ma'am, my cousin brothers were also there, and since like it, my coaching in my coaching, the head of the physics department was a student of SC Verma sir, Okay. and frequently SC Verma visited our like once in a year he visited our coaching. Mm-hmm. So and from that point of view also, I was very influenced to go to I have to go to IIT Kanpur, and my college was also like uh, my coaching, like all of the students, like they were so much influenced that yes, they have to go to IIT Kanpur. Wow, that's nice. So what is your advice for the students who plan to take a drop? Should they look for the rank or how do they keep motivated? What should be the criteria when you take a drop? Like, ma'am, when I did this decision to take a drop, my focus was on only two things. Firstly, it was like I wasn't able to give much time on JEE preparation Mm-hmm. because of my regular schooling, and secondly, it came to my it consistently came in my mind that I didn't prepare well enough. Like I wasn't able to complete all of the syllabus of JEE, Mm-hmm. and that's the reason getting a I'm not getting a good college or not getting a good rank. Okay. Not that I wasn't able to work hard, or I wasn't like There was I not didn't get the sufficient time. time for, yeah, so time was a problem. So what was your routine when you took a drop? Do you used to study for 6 hours, 8 hours? Some people say. Ma'am, like when we take a drop, one thing like students get in trouble is that they think that they have studied this already, Hmm. and they just ये तो पढ़ लिया ये तो पढ़ लिया है, and then they move forward. But that's the point where where they will make mistakes. Okay. पढ़ लिया है तो इससे पहले ही पढ़ा था, but वो yield नहीं दिया. It Okay. means we haven't studied it that well. Mm-hmm. तो हमें जब if any student is planning to take a drop, Hmm. I would suggest him कि like A to Z जाओ in Okay. any chapter, in any subject. Okay. Don't miss anything. And what is the revision routine like? And Okay. yes, revision is like very much compulsory for students who are taking drop, because uh, generally what I feel is the students who plan to take a drop are not as much sharp-minded as the students who get like under 5,000, 4,000 in the first time. Okay. So they have to work hard. Hmm. So um, if 1 year time is given for a drop, Hmm. then I would suggest 8 months should be given for like thorough studying, like going from A to Z, and then last 4 months only for 4 months for. revision and tests. Now, one question we have is children ask that they are able to solve the normal problems of physics, JEE mains, but how should they solve the difficult problems of JEE advanced in physics? What would you recommend? How should they approach the problem? Ma'am, like yes, that's the point.
where actually physics comes, because in JEE mains it's more of a like yeah, if you know the formula, if you know a little bit of concept, you are able to solve the problem and get the marks. But in JEE advanced it comes like there, first of all, we don't have to do all the questions, but if you know the actual physics, like what's if we if we consider the concept of physics by S.C. Verma sir, that book deals with all of these questions which once came in J Advance as it is. Okay. So Yes, you recommend that we should go thoroughly through concepts of physics by H.C. Verma sir? yes, all of the questions at least 2 times. Only the questions or the theory part also you recommend? Theory part is best, but if you have studied theory part, like if someone is watching NTVL lectures, so that's better, I guess, because studying just text won't help. A teacher who like in the lectures, if someone is teaching those concepts, that I think that is better, and then after watching the lectures you can just go to the questions. Okay. So now I would like you to attempt one test and tell us what was your thinking while you were solving those questions. How should one approach the paper? Okay. Yes, ma'am. Chalo, let's start that. You can start sharing your screen. Yes, ma'am. Kindly log out and log in again. Otherwise the session sometimes get interrupted. Ma'am, like I have to log in again. Just log out and log in again from the fresh browser. Okay, ma'am. Or the new tab. Take a new tab, log out and log in again. Okay, ma'am. And then share your screen. Ma'am, is the screen visible? Yeah. Ritkesh, one more question. Yes, we have one question. How should we approach physical chemistry? Like everybody says NCERT books are enough for chemistry. For physical also you will recommend NCERT or should we refer? Yes, ma'am. Ma'am, in physical chemistry, if someone is able to solve all the problems in the back of the after the chapter, some questions are there. If someone is able to solve all those problems, I guess he has prepared more than sufficient for physical chemistry, even for JEE Advanced. Acha. So you recommend that we should go for only NCERT books? Yes, ma'am. And if apart from this, for every chapter in every subject, previous year questions is must. Okay. Previous year questions. Okay. Yes, ma'am. So first question here, the formation of cyanohydrin from acetone is this type of reaction. Cyanohydrin means कि acetone पे CN minus का attack है, मतलब oxo group पे CN minus का attack, CN minus हमारा nucleophile है, nucleophile आपका double bond है, तो nucleophile addition reaction 2.56 into 10 to the power minus 3 equivalent of QH is required to neutralize 0.12544 gram of H2O, H2SO4 the atomic mass of X. ये तो ऐसे ही लग रहा है कि H2SO4 होना चाहिए, बट ये कुछ और डाई बेसिक एसिड भी है, कि फिर भी चेक लेते हैं. तो ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन लग रहा है सिंपल से. तो 2.5 into 10 to the power minus 3 into इसका मोल फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, QH का क्योंकि बेसिक 1 ही है. is equal to 0.12544 ग्राम ऑफ H2SO4. इसका मॉलिक्यूलर 2 है, ठीक है. एटॉमिक मास ऑफ X इक्वल टू सॉल्व करने पे आ जाएगा 29 नहीं 31.89 जो कि अप्रॉक्स इक्वल टू 32 हो जाएगा. 32 हमारा अरे ये तो एक्चुअली सल्फर का ही निकला. हाँ ठीक है, बट एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए. ओके, फिर यहाँ पर ऑक्साइड और सल्फाइड और अरे हाँ ये तो मेटलर्जी का क्वेश्चन है. ओके, ये वर्ड्स बहुत ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि हमारा फ्लोस्पार जो, अच्छा एक सेकेंड, ऑक्साइड और सल्फाइड और ऑक्साइड और सल्फाइड और सल्फेट और हेलाइड और हमारा ओके फ्लोस्पार कोरंडम फेल्सपर बेराइट्स गलेना. ओके, तो फ्लोस्पार हमारा CaF2 होता है, बेराइट्स हमारा BaSO4 होता है और फेल्सपर हमारा
फेल्सपर हमारा तो ये हमारा सिलिकेट और भी होता है आई गेस, और एल्यूमिनियम और भी कह सकते हैं, क्योंकि KAlSi3O8 होता है इसका फॉर्मूला। तो ओके, बेराइट्स हो चुका है हमारा। उसके बाद कॉपर हमारा है, एल्यूमिनियम में ऑक्साइड और हो जाता है, Al2O3 उसका फॉर्मूला होता है, और फिर गैलियम और PbS होता है, ये सल्फाइड और होता है। ठीक है, तो हमारा होगा, इसको मैच किए तो हो जाएगा पहले का E, दूसरे का D, तीसरे का B, चौथे का C, EDBC, EDBC, EDBC फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन, बेंजीन में क्योंकि डबल बॉन्ड होते हुए भी मतलब रेजोनेंस, डबल बॉन्ड होते हुए भी 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए क्योंकि रेजोनेंस इतना ज्यादा होता है कि एक्चुअली डबल बॉन्ड नहीं होता, एक्चुअली सिंगल बॉन्ड नहीं होता। तो डबल बॉन्ड से कम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। डबल बॉन्ड से ज्यादा तो मतलब कि जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो डबल बॉन्ड से ज्यादा, सिंगल बॉन्ड से कम, लॉन्गर देन डबल बॉन्ड से ज्यादा, लॉन्गर देन सी डबल, हाँ ठीक है ये होगा। अब विच आर द फॉलोइंग इज लेस देन जीरो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन में तो देखिए डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्चुअली डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी घटती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। डेल्टा जी नेगेटिव हो तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस नेगेटिव होगा क्योंकि एक्चुअली हीट रिलीज हो रही है। तो तीनों हो रहा है, तो चौथा ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। LaOH thrice is the least basic among hydroxides of lanthanides। नहीं नहीं नहीं, ये तो मोस्ट बेसिक होता है lanthanides में। Lead are 4 plus and hafnium 4 plus possesses among almost the same ionic radii। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ सेम आयनिक रेडाई, हाँ सेम आयनिक रेडाई होता है क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ओके, C4+ कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ क्योंकि C+3 अच्छा स्टेबल होता है और इसीलिए C+4 रेड्यूस होगा, इसीलिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा, पहला वाला मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग मोस्ट बेसिक होता है इसलिए गलत है, दूसरा तीसरा। solubility of N2 in water at 300 Kelvin, solubility of N2 in water at 300 Kelvin is इतना, ठीक है ये तो हेनरीज लॉ से होगा आई गेस। सॉल्युबिलिटी और प्रेशर दोनों, हाँ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो P1/P2 इज इक्वल टू S1/S2। तो डेटा क्या गया, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं क्योंकि, तो P1/P2 इज इक्वल टू S1/S2। ये हमारा दे देगा S1/S2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.01 ग्राम पर लीटर, तो उसकी हो जाएगी S1 की वैल्यू जाएगी 0.015, 0.015। for the reaction 2A plus B plus C, Kc is equal to 10 की पावर -12 with a vessel of 21731। ठीक है, ये तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ रहा है, हमारे पास Kc दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्शन है 2A plus B gives C plus D, और ये हमारा टू, इनिशियली ए का कितना मोल है, 2 मोल है, बी का 1 मोल है, सी का 7, डी का 3। तो ए का मान लिए कि एक्स मोल्स सबके कट रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम ए के हो जाएंगे 2 - 2x, बी के हो जाएंगे 1 - x, सी के हो जाएंगे 7 + x, डी के हो जाएंगे 3 + x। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है 10 की पावर 12 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। 10 की पावर 12 इज इक्वल टू 7 + x इंटू 3 + x डिवाइडेड बाय 2 - 2x का स्क्वायर इंटू इंटू 1 - x। इसको सॉल्व किए तो आएगा ये नेक्स्ट
इक्वल टू 0.0998, x इक्वल टू 0.998। अब क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए देख रहे हैं तो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस, हमारा अप्रॉक्स हो जाएगा ये 1.9 के आसपास, हमारा जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। Which of the following compound is not formed in heliform reaction? CHF3, CHCl3, CHI3, CHBr3, CHF3। बाकी सब हो जाते हैं, CHF3 एक्सेप्शन होता है। CHCl3 का तो वो बनता है ना, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन से बोलते भी हैं। ठीक है, CHF3 नहीं होता है पहला ऑप्शन। फिर विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम? BCl2 SrCl2, SrCl2 करता है, BeCl2 MgCl, हाँ, CaCl2 BaCl2 करता है, BCl2 MgCl2 नहीं करते हैं दोनों। दूसरा, ठीक है, BCl2 MgCl2 नहीं करते हैं। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है ना, क्योंकि एस ऑर्बिटल जस्ट फिल्ड होता है इनमें। हाँ, S2 होता है और उसको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत दूर लगता है, इसीलिए एनर्जी बैरियर इतना ज्यादा होता है कि इम्पार्ट नहीं करते हैं कलर। BCl2 and MgCl2। If the following is expected to have least delta naught value, CONH363 प्लस, एक सेकेंड कंपेयर करना पड़ेगा इसी को। CONH363 प्लस RHNH363 प्लस IRNH नहीं, NH3 6 times 3 प्लस COF 6 3 माइनस। ओके, सो एक्चुअली में डेल्टा नॉट वैल्यू कम कब होगी? जब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा। और स्प्लिटिंग तब कम होगी या तो डी इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हों, और या तो हमारे पास बहुत वीक लिगेंड हो। तो लिगेंड तो सब में सेम है लगभग, एफ और एनएच भी एकदम लगभग सेम होता है। तो पर इरिडियम में क्या होता है कि इरिडियम में हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग एफ 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 पे बहुत, एफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से डी ऑर्बिटल पे काफी ज्यादा फोर्स लगेगा, और इसलिए वो बहुत ज्यादा बाउंडेड रहेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे उतने अच्छे से, इसलिए डेल्टा नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरा, ClO2 is an anhydride of SClO2 SClO3। ओके, एक बार SClO2 का देख लेते हैं। दो मॉलिक्यूल ऑफ SClO2 ले लिए, इसमें से H2O निकाल दिया तो कितना बचा? Cl2O4, मतलब 2 टाइम्स ClO2। हाँ, पहला सही है। एक सेकेंड, H2O निकाले ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। SClO2 नहीं होगा। SClO3 अगर देखे, तीनों उन्होंने निकाले, नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तब तो, और मतलब हमको चाहिए कि ऑड हो। दो अगर इसको लेंगे तो O4 रहेगा, नहीं इसको भी लेंगे दो O तो 6 हो जाएगा। दो और तीन, या तीन और चार, इसको देख, SClO2 और SClO3 होगा एक्चुअली। हाँ, एक बार इसको SClO3 और SClO4 को देख लेते हैं। SClO4 H2O निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास O6Cl2, मतलब ये तो ClO3 बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, और ClO2 प्लस SClO3 ही सिर्फ बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। H2O निकालेंगे तो Cl2O4 मिलेगा। 2 ClO2। What is H plus of a solution of, एक second. What is H plus of a solution of 0.01 molar in SCN, 0.02 molar in NaCN, KFSCN, मतलब अच्छा, एक सेकेंड, NaCN क्योंकि हमारा सॉल्ट है तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा,
तो Cn माइनस हमारा 0.02 रहेगा। एंड सिंस के ऑफ SCN इतना ज्यादा कम है कि SCN का Cn माइनस काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू Cn माइनस ऑफ NaCN। तो हम Cn माइनस कंसंट्रेशन सीधे 0.02 लिख सकते हैं। तो Ka की वैल्यू एक डिसोसिएशन ऑफ एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा इज इक्वल टू H प्लस इंटू Cn माइनस डिवाइडेड बाई SCN। और H प्लस का कंसंट्रेशन हमारा मान लिए एक्स है और यही फाइंड करना है। Cn माइनस का कंसंट्रेशन 0.02 और SCN का कंसंट्रेशन 0.01 और के हमारा 6.2 इंटू 10⁻⁻10। ये हमारा इस पे कंसंट्रेशन दे देगा 3 पॉइंट नहीं 6.2 डिवाइडेड 2 तो 3.1 इंटू 10⁻⁻10 3.1 इंटू 10⁻⁻10 चौथा ऑप्शन। Consider reaction 2NO plus O2 gives 2NO2. Predict whether the formation is spontaneous at 298 Kelvin. क्या दिया है reaction 2NO plus O2 gives 2NO2. Okay. अच्छा डेल्टा जी फॉर्मेशन NO का दिया है, डेल्टा जी फॉर्मेशन NO2 का दिया है। O2 की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में, और डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ एक किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है। तो हाँ, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू डेल्टा जी फॉर्मेशन 2 टाइम्स डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ NO, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करने पे यार ये तो साफ साफ नेगेटिव हो जा रहा है। डेल्टा जी रिएक्शन नेगेटिव है तो इसका मतलब सीधे सीधे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर पॉजिटिव रहता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता, अगर जीरो होता तो इक्विलिब्रियम पे होता। अभी तो नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट और इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑर्डर ऑफ एनिक कैरेक्टर। नहीं, पहला ही गलत है, दूसरा सही है, तीसरा तीसरा लिथियम हाइड्राइड थर्मोस्टेबिलिटी से पैदा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है बॉन्ड। हाँ BSO4, हाँ ठीक है, ये भी सही है, पहला ही गलत है क्योंकि एन राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। सो NaCl इज मोर आयनिक देन MgCl2। कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ठीक है, C4H10O ऑन ट्रीटमेंट विथ इक्वल टू विथ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट व्हेन द कंपाउंड इज डिटरमाइंड इट्स आइसोल्यूटिन। और ये तो प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। ठीक है, C4H10O हमारा है, ये हमारा एक्चुअली दे देगा C4H10O प्लस ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 प्लस HCl को हम लोग ग्लूकास रिएजेंट कहते हैं। तो कंपाउंड ए केमिकल फॉर्मूला ग्लूकास रिएजेंट दे रहा है तो उसका ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्लूकास C4H10O C4H10O। यार इसमें तो स्पेस ना, तो ये कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं आना चाहिए। कि C4H10O का मतलब हो गया कि एक OH बॉन्ड आ रहा है, प्रोपेन L होना चाहिए। ऑन ट्रीटमेंट कंपाउंड ना, तो फिर भी अगर हम मानते हैं तो ये हो जाना चाहिए 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेनेन है, प्रोपेन हो जाना चाहिए। वहां पर क्लोरो तो आ ही जाएगा।
तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल अगर रिएक्शन होता है तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेनाइन प्रोपेन। ये तो OH होना चाहिए था, फिर भी अगर मान लेते हैं यहाँ पर AL होना चाहिए था, आई गेस प्रोपेनल प्रोपेनल। हाँ, OH होना चाहिए कि C4H10 OH मतलब अनसैचुरेशन नहीं है, क्योंकि H की वैल्यू 4 × 2 + 2 है। Let's see 2 chloroprene which are the following exhibits tautomerism CH3 क्या है ये CH3 2 समझ में नहीं आ रहा है। CN CN को कैसे कर देगा प्लस CNO नहीं दे पाएगा, NO2 नहीं कर पाएगा, NO2 नहीं कर पाएगा तो पहला ही होगा। लेकिन ये CH3 ट्वाइस NH, अच्छा हाँ ठीक है, तो पहला हो जाएगा। अमीनिमाइन टोटोमेरिज्म शायद कहते हैं इसे। The radii of Na plus Cl minus और इतना इतना the NH length of NaCl unit cell। अरे ये तो वो है ना, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर होता है एक, एक ZnS स्ट्रक्चर होता है। ZnS स्ट्रक्चर हमारा डायमंड के स्ट्रक्चर का जस्ट इक्विवेलेंट होता है एकदम। और एक होता है CsCl स्ट्रक्चर। हाँ, ये तीन बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। तो NaCl तो हमारा वो होता है ना कि शायद एस हमारा वो बनाता है, अरे Cl- हमारा वो FCC बनाता है, और Na हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होता है। तो अगर वैसे देखेंगे तो अगर H पे देखेंगे हम तो 2 टाइम्स ऑफ Cl- रेडाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस रेडाई इक्वल टू H लेंथ हो जाएगा। तो H लेंथ ही पूछा है, ये पहले 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl- इज इक्वल टू 190 प्लस 362 is equal to 552 picometer. Third option. What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2? अरे ये तो सिंपल सा उसका होता है ना, एक रिडबर्ग कांस्टेंट करके होता है। 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 हमारा इनिशियल स्टेट, n2 हमारा फाइनल स्टेट है। तो इससे हम लोग देखेंगे तो n हमारा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/16 इंटू R। अच्छा, 1/R की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। इसको यूज करके सॉल्व कर लिए, ये बहुत अच्छी वैल्यू रहती है। 1/R इक्वल 912 एंगस्ट्रॉम, सीधे से यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू 486 नैनोमीटर। हाँ कुछ, हाँ। फिर the following is used for the conversion of 1 methyl cyclopropane pentene to uh, यार यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहला और चौथा ऑप्शन सेम है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सेम है। एक्चुअली होना चाहिए BH3 टेट्राफ्लोराइड। टेट्रा THF क्या होता है यार, THF टेट्रा हाइड्रो, नहीं यार, कंपाउंड का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को तो। पर CH3COO D वाला होना चाहिए, दूसरे या तीसरे में होना चाहिए कोई। जाने तो लीव करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। तो ये हमारा सीरीज है सिग्मा R इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, 25 CR, नहीं, R इज इक्वल टू 0 to 25, 50 CR, 50 माइनस R C
25 माइनस आर इज इक्वल टू के टाइम्स 25 नहीं 50C25। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर हम लोग दो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। पहले तो एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, तो 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर को लिख सकते हैं हम लोग 50 माइनस आर सी 25। उसके बाद अब हम लोग इसको एक्सपैंड कर देते हैं 50 सी आर इंटू 50 माइनस आर सी 25 को एक्सपैंड किए तो आ जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल, और ऊपर नीचे 25 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल। ये 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने का यही सेंस था ताकि हमें एक नया ये कॉम्बिनेशन मिल जाए। अभी हो जाएगा क्योंकि हम ये देख रहे हैं 50 सी आर और 50 माइनस आर सी 25 में 50 माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर नीचे कटेगा तो हमें एक नया कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। तो हम 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इससे हमारा बन जाएगा एक्चुअली 50 माइनस आर 50 माइनस आर चला गया, ये हमारा हो जाएगा अब 50C25 और 25 फैक्टोरियल नहीं 25CR। अब इसको हमको ऐड करना है R इज इक्वल टू 0 से लेके एन 25 तक। 50C25 बाहर आ जाएगा और सिर्फ 25CR को ऐड करना है तो वो 2 के पावर 25 आ जाएगा वैल्यू। तो ऑप्शन ई। अब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, तो इस एपी का फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब इसमें दो चीजें हमको कन्वर्ट करनी होंगी, जैसे कि अगर बेस अगर मान लो कि लॉग ए टू द बेस बी है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई लॉग बी टू द बेस ए। एक ये होता है लॉगरिथम का अच्छा फॉर्मूला। एक हो जाता है कि हाँ लॉग ए स्क्वायर टू द बेस बी की वैल्यू आती है 2 टाइम्स लॉग ए टू द बेस बी, और लॉग ए टू द बेस बी स्क्वायर की वैल्यू आती है 1/2 लॉग ए टू द बेस बी। ये तीन फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होते हैं। अब इसको यूज करके कुछ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3, 1 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3। सेकेंड ऑप्शन, आई गेस ऑप्शंस क्लियर नहीं है यहाँ पे, देखो पता नहीं चल पा रहा है कौन सा इसमें, लेकिन बेस 3 में होना चाहिए तो होना चाहिए। The area square enclosed by y minus x is equal to 1 and x square plus y square is equal to 1. Okay. तो y is equal to x plus 1 एक लाइन होगी जो 0,1 और -1,0 से पास करेगी। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो एनक्लोज्ड एरिया अधिकतर जो छोटा वाला पार्ट होता है हम लोग उसे देखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा पहले तो एक क्वाड्रेंट का सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, अगर उसका रेडियस हाफ है तो नहीं, रेडियस हाफ नहीं है, रेडियस 1 है। रेडियस 1 है तो उसका सर्कल का हमारा वो कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। ठीक है, एक पूरे सर्कल का, और फिर पाई/4 हो जाएगा एक क्वाड्रेंट का। अब पाई/4 में से माइनस करना होगा इस ट्रायंगुलर एरिया का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन से बन रहा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 1 इंटू 1। तो आंसर आ जाना चाहिए पाई/4 माइनस 1/2। 2 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, इन्फिनिटी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट
A computer producing factory has only two plants, T1 and T2. T1 and T2, और T1 20% प्रोड्यूस करता है तो T2 80% प्रोड्यूस करेगा. 7% ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव. अच्छा, तो ये मतलब टोटल है, वो T1 से और T2 से मिला के 7% कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड वो डिफेक्टिव होते हैं. तो P जो हमारा है वो है कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव इवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1 इज इक्वल टू 10P T2. अच्छा, ओके. अब where P denotes the probability of an event a computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective, then the probability that is produced in plant T2 is that it is produced in plant T2. अच्छा, अरे तो ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पहले है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. हाँ, तो पहले हम लोग उस हम लोग उस प्रोबेबिलिटी को x मान लेते हैं. इसमें होता है कंप्यूटर डिफेक्टिव टर्न होता है और वो T2 में प्रोड्यूस होता है, ठीक है. और 1 माइनस एक्स हमारा, अच्छा, और जो हमारा 10x होगा वो होगा कंप्यूटर डिफेक्टिव आए होगा एंड वो प्रोड्यूस हुआ होगा T1 में. तो टोटल प्रोबेबिलिटी उस थ्योरम यूज कर लेते हैं. तो 7/100 इज इक्वल टू 1/5, मतलब 20/100 जो कि T2 में प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं T1 में प्रोड्यूस हो रहा है, इंटू 10x प्लस 4/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, तो इस यहाँ से आ जाएगा हमारा 280x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1/40. ठीक है. अब जो हमारा इवेंट ए है वो है कि कंप्यूटर डिफेक्टिव, इवेंट ए हमारा T2 है कि वो प्लांट T2 में आया है, और इवेंट बी हमारा है कि कंप्यूटर इज नॉट इफेक्टिव है. ठीक है. अब पी प्रोड्यूस, हाँ, अब हमारा जो बेस हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा 4/5 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू 1 माइनस 10x प्लस 4/5 इंटू 1 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू 1/40 पुट करने पे आ जाएगा इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4/5 नीचे से कट जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा 78/93. ठीक है. The set of values of B for which local extremum values, local extremum इसका मतलब सिर्फ maximum नहीं होता, local extremum मतलब maximum और minimum दोनों को extremum ही कहते हैं. Values of the functions fx are positive where fx is equal to, fx की वैल्यू क्या है, 2a square x square, नहीं 2a square x cube माइनस fx की वैल्यू आ जाएगा 2a, नहीं 2/3 a square x cube माइनस 5/2 a x square प्लस 3x प्लस b. तो मैक्सिमम अकर सेट x इक्वल टू 1/3 कह रहा है, तो हम लोग मतलब f डैश x निकाल दें तो आ जाएगा 2a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 3. तो f डैश x एट x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो 2/9 a स्क्वायर माइनस 5/3 a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और f डबल डैश लेस देन 0 होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम मिल रहा है f डैश x. हाँ, ठीक है. और तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा. a की दो वैल्यू आएगी लेकिन a इज इक्वल टू 3 ही सही होगा, क्योंकि f डबल डैश लेस देन 0 भी करना होगा हमें. अब द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर विच एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर पॉजिटिव. तो अब a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और f डबल डैश लेस देन 0 करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा कि नहीं फॉर विच लोकल एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन fx आर पॉजिटिव वेयर fx, हाँ ठीक है. तो अच्छा, हाँ, तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे. अब a की वैल्यू जब वापस इसमें पुट कर दिए तो आ गया हमारा 18x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3.
तो यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 1/2 और 1/3। 1/2 पे मिनिमम है, 1/3 पे मैक्सिमम है। तो अब हम लोग को क्या करना है, f 1/2 देखना है। f of x at x इक्वल टू 1/2 और f of x इक्वल टू लोकल एक्सट्रीमम वैल्यूज फंक्शन। ठीक है, उस दोनों को ग्रेटर देन 0 करने पे हमें जो b की वैल्यू मिलेगी वो आएगी -3/8 से लेके इन्फिनिटी। दोनों का जो यूनियन हो, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, यही होगा आई गेस, -3/8 से इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन। If P and Q are two statements, then P ये क्लियर नहीं है, ब्रैकेट रहना चाहिए। फिर भी ट्राई करते हैं। तो P प्लस आई गेस ब्रैकेट होगा। P प्लस, इसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना चाहिए। मैथमेटिकल यहाँ यहाँ पर ये यूज आता है, और फिर फिजिक्स में भी आता है, सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में, वहां पे भी बूलियन सर्किट्स आता है। तो ये सीधे सीधे दो क्वेश्चंस आराम से निकल जाते हैं इसको आ जाने पे, बहुत इजी आता है। पी प्लस हमारा हो जाएगा ये नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो ये हमारा हो जाएगा पी डॉट क्यू बार। फाइनली पी डॉट क्यू बार थर्ड ऑप्शन होना चाहिए अगर वहां पे ब्रैकेट है तो। The coordinates of the ortho center of the triangle that has the coordinates of the midpoints of its sides at इतना पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0,0, 1,2, -6,3। तो अच्छा हाँ, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने होंगे। और अच्छा, ऑर्थो सेंटर की एक बहुत अच्छी बात होती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा -4/-4,5। 4,5 on differentiating tan inverse of √1 plus x square minus 1 divided by x। तो इसमें हम लोग, ये हमारा डिफरेंशिएशन विथ सब्सटीट्यूशन है, एनसीईआरटी में टॉपिक भी दिया हुआ है। अगर इसमें हम x इज इक्वल टू tan थीटा अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, सब्सटीट्यूशन मेथड इसे कहते हैं। फिर tan इनवर्स ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, √सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 हो जाता है ये। अब एक्चुअली हमें डिफरेंशिएट किसे करना है, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। कितना सिंपल हो गया एक्सप्रेशन। अब इसे डिफरेंशिएट किए तो आ जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 इंटू 1 प्लस। अब इसमें पहला और चौथा ऑप्शन तो एकदम ही सेम है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये 2x और वो एक्स स्क्वायर आएगा, तो पहला होना चाहिए। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a for within इक्वालिटी x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर प्लस 6x लेस देन 0। ये तो बहुत सिंपल है, हमेशा लेस देन 0 करना है। तो एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा a में x। इससे हमें लेस देन 0 कब होगा, हमेशा अगर लेस देन 0 करना है किसी उसको, तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होने चाहिए, क्योंकि हमेशा लेस देन 0 है। हमेशा लेस देन 0 का मतलब कभी भी कोई भी रूट, एक सेकेंड, हाँ, अगर सारे वैल्यूज लेस देन 0 आ रही हैं एक ही क्वाड्रेटिक में, तो इसका मतलब कभी भी वो एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, इसका मतलब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब हमेशा लेस देन 0, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इसी तरह हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो
दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन निकालेंगे तो आएगा हमारा इंटीग्रल वैल्यूज जो आ रही हैं वो हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 आ जाएगा हमारा 91। ये हमारा हो जाएगा कि x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है एफ एक्स हमारा। एफ एक्स हमारा x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है, तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा 1/1 + x का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब हमेशा इंक्रीजिंग है। तो अगर कोई भी फंक्शन एकदम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो वो 1 1 हो जाता है। तो 1 1 तो है ये फंक्शन। अब ऑन टू का देख लेते हैं। ऑन टू के लिए होता है कि कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर हो जाना चाहिए। तो कोडोमेन हमारा कितना है, 0 से इन्फिनिटी है। और रेंज देखने के लिए हम लोग इस फॉर्म, इसको पूरे को x के फॉर्म में लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है अगर, तो इसको x के फॉर्म में लिखे तो x इज इक्वल टू, ओके चेक करना पड़ेगा। तो 1 है, तो x नीचे ऐसे माइनस कर दे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई। हाँ, x की वैल्यू जाएगी y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, पर y इज इक्वल, y कभी भी 1 के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो मतलब वो हो जाएगा ना, वहां पर डिसकंटिन्यूटी है। तो रेंज में हमारे y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, जबकि कोडोमेन में हमारा ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो 0 से इन्फिनिटी पूरा बोला है। तो मतलब ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन। The mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1 respectively by a student whose state must 50 instead of 40। मतलब 50 ले लिया, 40 लेना था। And the correct standard deviation is okay। तो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो जगह हो जाता है समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन, और जो सिग्मा की वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू होती है, वो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा, इससे हम लोग मीन वाले फॉर्मूले से अगर हम लोग निकालें समेशन ऑफ एक्स आई, तो ये हमारा 4000 आ रहा है। अब 4000 में से -50 करके ऐड 40 कर देंगे, क्योंकि नया हमको निकालना मीन। तो नया मीन आ जाएगा हमारा 3990 डिवाइडेड बाई 10, हमारा 39 नहीं डिवाइडेड बाई 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 100 इज इक्वल टू 39.9। न्यू मीन हमारा 39.9 आ गया। अब इस हाँ, अब हम लोग उसको पुट करते हैं। अब हम लोग ओल्ड जो पुराना वाला स्टैंडर्ड डिवीजन है 5.1, उसमें से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू आएगी हमारी 162601 मीन, क्योंकि मीन पुट किया था वो आ जाएगा। अब इसमें से हमें ऐड करना है 1600 और माइनस करना है 2500। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे जो न्यू एक्साइज न्यू समेशन ऑफ एक्साइज स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा 161701। अब ये हो गया। एंड देन हमारा जो नया स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए 16170 माइनस 39.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का अंडर रूट, ये हमारे अप्रॉक्स वैल्यू रहेगी 5। तो चौथा ऑप्शन 5, द वैल्यू ऑफ इतना के, ये तो बहुत इजी है, 110 तक जा रहा है। ठीक है, सिग्मा के 110 तक जाना है, इज इक्वल टू साइन 2 पाई के डिवाइडेड बाई 11 प्लस आई कॉस 2 पाई के बाई 11। अरे ये तो इसका स्ट्रक्चर तो उसी टाइप का है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर यूज करते हैं तो, लेकिन nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो उसमें जब हम लोग ऐड करते हैं
तो हमारा आता है उसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू -1 आता है। तो इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट रहता है, मतलब साइन का जो पार्ट रहता है वो पूरा ऐड करने पे वो हमारा 0 आता है, और कॉस वाले का पार्ट हमारा -1 आता है। तो अब इसमें इसको पुट कर देते हैं, तो सिग्मा साइन 0 हो गया, प्लस आई सिग्मा कॉस हमारा जो हो जाएगा -1 है, तो आई इंटू -1 इज इक्वल टू -i। मैंने फ्रूट का पेनल्टी में बताया हमसे। अब वैल्यू ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी और एन आर आर, यार ये एन एन आर क्या है, कुछ एरर है, इसको लीव करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 250 मीटर अबव अ लेक एज इतना। अच्छा ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव लेक, ठीक है। ये हो गया हमारा इस 15 डिग्री, 15 डिग्री हो गया क्लाउड का एलिवेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, तो अभी tan 15 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स हो गया। h हमारा उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो ग्राउंड के 250 के भी ऊपर जो हाइट है वो हो गया, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस 500x, ठीक है। तो h cot 50, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो h cot 15 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस 500, h की वैल्यू हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाई √3+1, इसके बाद इज इक्वल टू h की वैल्यू हो जाएगी 250 √3 - 1। तो टोटल हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा 250 प्लस 250 टाइम्स √3 - 1 इज इक्वल टू 250 √3। ये भी 250 3 लिखा हुआ है, 253 लिखा हुआ है, कौन सा करें, पहला मार देते हैं। 250 √3 आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट। लेट p be the relation defined on all set of real numbers such that p is equal to a, अच्छा b, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ए बी की जगह अगर बी ए डालें तो भी सही होना चाहिए। तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है अगर, तो इसके जगह हम लोग सेक्स स्क्वायर बी डाल दें माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब भी इज इक्वल टू हटा देते हैं पहले, तो ये देखते हैं। सेक्स स्क्वायर बी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan सेक्स स्क्वायर ए -1, तो सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1 0, ठीक है। तो हाँ, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो सिमेट्री है, नहीं ये आइडेंटिटी है एक्चुअली। सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए और बी है, बी और सी है, तो सी और ए भी होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा दो इक्वेशन अगर सॉल्व कर देंगे तो फाइनली ए और सी वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा कि बी और बी कट जाएगा। हाँ 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 ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो एक्चुअली एक बैलेंस रिलेशन हो जाएगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये है हमारा 2√xy माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो इसको पूरा y से डिवाइड कर देते हैं और dx बाई dy के फॉर्म में लिखते हैं पहले। ये ऐसे फॉर्म में निकालना जरूरी होता है, हमेशा dy बाई dx कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाता है, कभी कभी dx बाई dy भी सॉल्व कर देता है क्वेश्चन। तो dx बाई dy इज इक्वल टू हो जाएगा फिर x बाई वाई माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ y। हाँ बन गया। अब हम लोग x बाई वाई की इक्वल टू वैल्यू v रख लेंगे, एंड देन फर्दर इसको अंडर रूट एक्स की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट वी इंटू अंडर रूट वाई हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू वी वाई हो जाएगी। अगर इसको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो, और उसके बाद इसको अच्छा एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी डी वाई
प्लस वाई डी वी, ठीक है। पर y की वैल्यू, अच्छा ठीक है, तो x की वैल्यू हर जगह वी वाई कर दो, और ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में बचेगा एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस सी, एल एन वाई, तो अगर उधर लाएंगे तो प्लस आना चाहिए बीच में, और एक्स बाई वाई है तो थर्ड होना चाहिए। ये फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स, अच्छा इसको चलो मैक्स ऑफ माइनस एक्स मॉड आई थिंक, और 1 + x², ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एट विच पॉइंट इट्स नॉट डिफरेंशिएबल, -1 से 1 के बीच में ही है फंक्शन, ठीक है। तो इसको ग्राफ के थ्रू बनाया तो पहले एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, -1 - x² बोला है, ठीक है। सर्कल का नीचे वाला पार्ट नेगेटिव वैल्यू से क्या सब कर रहा है ये इसमें, एंड देन माइनस माइनस एक्स का मोड, ठीक है। तो ये ऐसे वी शेप का नीचे उल्टा वी बनेगा नीचे, और ये मैक्स सब लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा एक्चुअली 3 एलिमेंट्स पे, एक जीरो पे और एक दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉर्नर्स बनेंगे, जहाँ पे कॉर्नर्स बनते हैं ग्राफ में वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ 2 sin² cos थीटा, नहीं आई इसमें कुछ ना कुछ तो टाइपिंग एरर है, क्योंकि 4 cos थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली काफी जहाँ तक मुझे लग रहा है, अ, अगर यहाँ पर अगर गैस मारना भी हो तो अधिकतर देखा गया है कि जो ज्यादा सिंगल सिंगल थीटा टर्म्स होते हैं इसके इंडिपेंडेंट फाइनल आंसर आता है। प्रीवियस ईयर में भी काफी बार आया हुआ है, तो आई गेस इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाता है। And ये क्या है 1 to 1, नहीं नहीं, ये भी टाइप हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं हमारे बस 48th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 - tan x² into 1 - sin x/1 + tan x/2 into π - 2x/3, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो इसको लिखे tan of π/4 - x/2 into 1 - sin x/4 into π - 2x/4 into π - 2x²। अब tan of π/4 - x/2 इंटू 1 - sin x को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos x π/2 - x/2 π - 2x²। तो अब इससे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो और वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/4 आ जाएगी पहले कॉमन टर्म से, और फिर दूसरे वाले से निकालेंगे तो 2/16 आ जाएगा। एक्चुअली ये दे देगा 1/32, थर्ड ऑप्शन। ये हमारे कुछ ये किससे हम लोग सॉल्व किए, एक्चुअली इसमें तो वो यूज किया है जैसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x/x = 1 हो जाता है, लिमिट उसी तरह लिमिट tan x/x while x टेंडिंग टू 0 1 हो जाता है, ये वाला यूज किए हैं। और लिमिट जब x बहुत क्लोज होता है 0 के, तो sin x और tan x अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि cos x उस समय 1 हो जाता है, ठीक है। next is the magnetic moment and pole strength of a power magnet और इतना एंड इतना, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मैग्नेट इनटू पोल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। एकदम उसी तरह ये होता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा वो होता है
डाइपोल मोमेंट होता है, उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाता है सेपरेटिंग लेंथ ऑफ द टू चार्जेस इनटू एनी ऑफ द रेस्पेक्टिव चार्जेस। तो इसमें भी वही है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी L is equal to magnetic moment divided by pole strength is equal to आ जाएगा 3 into 10 की power minus 2 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर। An isolated soap bubble is kept in a container in which the pressure is maintained at P naught. The bubble is given some charge due to, अच्छा, तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट और फ्लूइड से कंसेप्ट को मैच कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रेशर कितना होता है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रेशर हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह अगर मैग्नेटिक का यूज कर देता तो म्यू नॉट बाय 2 इंटू बी स्क्वायर आता। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर है हमारा। ठीक है, अब रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द बबल रिड्यूसेस टू पी नॉट। ठीक है, तो एक्चुअली एज पर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर का कहें तो पी नॉट इज इक्वल टू पी आई प्लस पी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी क्यू बाई एरिया, एरिया जो हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर और हाँ, और एक और इक्वेशन मिलता है हमारा पी नॉट माइनस पी आई इक्वल टू 4t बाई आर। 4t बाई आर होता है हमारा सोप बबल के लिए, इसी तरह वाटर बबल के लिए शायद 2t बाई आर होता है। तो इन सबको यूज करने पे हमारा इस सॉल्व हो जाएगा एक आराम से। अब अगर 200 ओम रेजिस्टेंस है कलर कोड एज पर स्टैंडर्ड color coding, if one replaces the red color by green in the code, the new resistance will be। अच्छा हाँ, तो जो 2 है हमारा ये रेड होता है और ग्रीन हमारा 5 को शो करता है। कलर कोड ये एस सी वर्मा वाली बुक में भी दिया हुआ है, काफी यूजफुल हो जाता है यार ये। क्वेश्चंस में सीरीज से पूछ देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देने की जगह कलर कोड दे देगा बड़े से क्वेश्चन में, तो वहां पर यूजफुल हो जाता है, कलर कोड आना चाहिए। तो जो ग्रीन हमारा होता है, ग्रीन की वैल्यू 5 होती है, तो 500 ओम हो जाएगा। 4 identical heat conductors are connected as shown in the figure. The temperature theta of the junction is। अब इसको हम लोग हाँ, ऐसे कि 2 चैप्टर्स लिंक्ड हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन। बस जी और के को इंटरचेंज कर दें और मास और चार्ज को इंटरचेंज कर दें। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम सेम है। उसी तरह करंट और हीट वाला हीट चैप्टर जो है, हीट करंट और एक्चुअल करंट लगभग सेम है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग किरचॉफ सर्किटल लॉ लगाएंगे ये जंक्शन पे जहाँ पे थीटा पूछा है, वहां पर अगर सीधे लगा दे तो I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 की वैल्यू 0 हो जाती है। एंड देन क्योंकि सबका आइडेंटिकल रॉड्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाकी सब कट कर दें तो थीटा माइनस 100 प्लस थीटा माइनस 90, नहीं थीटा प्लस 80, नहीं थीटा माइनस 80 प्लस थीटा माइनस 20 प्लस थीटा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो टोटल सम कितना आ जाएगा 240, मतलब 4 थीटा इज इक्वल टू 240, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो जंक्शन की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन। A block starts moving up a fixed inclined plane of inclination 60 degree with velocity of इतना and stops after 2 seconds. The approximate value of coefficient of friction is। ठीक है, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो और पहले क्या बोला है ये, अ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मिलीसेकंड
नहीं 20 मीटर पर सेकेंड एंड स्टेप्स आफ्टर 2 सेकेंड। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से हम लोग निकाल लेते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी है 20 एंड स्टॉप्स तो 0 माइनस नहीं प्लस 80। एक्चुअली ए नेगेटिव होगा, ए इन टी, ठीक है। तो -20 इज इक्वल टू 80 करेंगे ए इंटू टी, टू टाइम 2 सेकेंड है हमारा, 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू -10 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब ए जाएगा थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, इसमें ए की वैल्यू -10 इज इक्वल टू जी 10 हो जाएगा, साइन √3/2 मतलब 5√3 प्लस म्यू 1/2 5 कैंसिल कर दिए तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.27। फ्री बॉडी डायग्राम काफी हेल्प करता है इसमें। अरे ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हुआ है, ये शायद प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ये एडवांस में भी कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसमें। इसलिए बस हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज करनी है। ये हमारी वैल्यू आर है, ये आर है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है हमारा तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो फाइनली जो ये भी आर हो जाएगा हमारा, रेडियस आर है ये, तो रेडियस आर के बराबर है इस समय इसकी लेंथ, और नेचुरल लेंथ इसकी 3r/4 है। तो अभी एक्सपैंड कितना हुआ है, r/4 एक्सपैंड हुआ है। तो अभी अगर एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग देख लेंगे, स्ट्रिंग या वायर, तो वो हो जाएगा हमारा r/4, ठीक है। तो अब टेंजेंशियल फोर्सेज जो होंगी हमारी वो लगेंगी, जैसे कि एफ अगर स्प्रिंग फोर्स देखना तो एफ कॉस 30 डिग्री प्लस एम जी कॉस 30 डिग्री उसके वेट की वजह से, तो ये हमारा हो जाएगा के एक्स प्लस एम जी कॉस 30 डिग्री। एक्स हमारा r/4 है, तो टेंजेंशियल फोर्स जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 5 mg/8 √3। और जो नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल प्लस स्प्रिंग फोर्स एफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री। तो एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी mg माइनस mg/4 इंटू 1/2, तो ये जाएगा 3 mg/8। One slit of a double experiment is covered by a thin glass plate of refractive index इतना and the other by a thin glass plate of the refractive index इतना, ठीक है। तो the point on the screen where the central maximum fall before the interrupted is now occupied with the fifth right bench. Assume the plate have same thickness t। हाँ ठीक है। तो अब इसका मतलब कि ये हाथ पहले से ही फेस शिफ्ट होने लगा। तो इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है कि उसमें किस स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी। v1/v2 जो होता है हमारा μ2/μ1 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टी टाइम लगता हवा में ट्रैवल करने के लिए, सिंपली एयर में ट्रैवल करने के लिए। अब उसमें जब ट्रैवल करे तो म्यू म्यू से कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा μ-1t फेस शिफ्ट इसका पहले वाले से। अगर पहले वाले स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 है, दूसरे वाले से निकलेगी तो उसका भी हमारा दूसरा μ2-1t। अब ये पहले से कुछ फेस शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि फिफ्थ बाइट फ्रिंज कैप के हिसाब से हमें निकाल देना होगा। मतलब कि अब ये जो फेस शिफ्ट है एक्चुअली μ2-μ1 टाइम्स टी, इस फेस शिफ्ट की वजह से जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम था वो एक्चुअली फिफ्थ पोजीशन पे जा चुका है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज में जा चुका है। तो 5β/2 के बराबर आ जाएगा वो। तो इससे वो निकल जाएगा आराम से। Assume the plate has the same thickness and wavelength of light quality, wavelength भी दिया हुआ है, थिकनेस टी दिया हुआ है। तो μ2-μ1 टी हमारा फेस शिफ्ट होगा। A small satellite of mass m is revolving around the earth in a circular orbit of radius r0 with speed v0
At a certain point in its orbit, the direction of motion of satellite is suddenly changed by angle cos. यार इसमें तो आई गेस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ये यार आता नहीं है हमको तो। शिट। कोई नहीं। The minimum velocity v the minimum velocity v with which charge q should be projected so that it manages to reach the center of the ring starting from the position from। बहुत इजी है, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन कर देना है। अगर किसी तरह अगर बस सो दैट इट मैनेजेस टू रीच द सेंटर, तो इसका मतलब कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी एटलीस्ट जीरो हो सकती है सेंटर पे। तो हम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द रिंग इज इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग एनर्जी कंजर्वेशन से। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू आर एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू जीरो प्लस के क्यू क्यू बाई आर एट सेंटर। तो इससे हो जाएगा हमारा v की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस अंडर रूट टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम आर का होल अंडर रूट। तो क्यू एम आर आई गेस पहला वाला है, टाइप पर काफी ज्यादा है, अंडर रूट है ही नहीं। ठीक है, तो एन alternating current is given by I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t। जब ऐसा कुछ दिया रहा है ना, तो पहले दोनों को सेम साइन में, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्री में कर लो। जैसे कि कॉस को या तो साइन में कर लो तो दोनों साइन साइन हो जाएंगे, या तो साइन को कॉस में कर लो दोनों कॉस कॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि जो फेस डिफरेंस है वो हमारा पाई बाई टू है दोनों के, दोनों I1 वाले करंट अल्टरनेटिंग करंट में और I2 वाले अल्टरनेटिंग करंट में। तो इसमें वेक्टर एडिशन यूज कर लेते हैं सिंपली से। तो एक हमारा एक्स एक्सिस का अलॉन्ग होगा I1, दूसरा हमारा वाई एक्सिस का अलॉन्ग होगा I2। तो इसका जो वो होगा वो हो जाएगा हमारा, जो आई नेट हो जाएगा वो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारा आई आर एम एस होता है वो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू होता है, तो आई नॉट हमारा अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे। Two particles of mass m two particles of masses two particles of masses m and 3m approach each other with different velocities. After collision, the particle of mass m has velocity v in the center of mass frame. Velocity of particle of 3m in the center of mass frame is। हमेशा इससे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में, एस सी वर्मा के क्वेश्चन में। उसमें साफ साफ बताया है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा जीरो हो जाएगा। तो अगर v फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m v है तो 3m की वैल्यू हो जाएगी, 3m का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो माइनस v बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि माइनस तभी जाके हमारा, अगर मान एक सेकेंड, अगर हम मान लेते हैं 3m की वैल्यू, 3m का वेलोसिटी v है एट द एंड, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हमारा मोमेंटम जीरो हो जाएगा, टोटल मोमेंटम। तो एम वी प्लस 3mv 3mx, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस v बाई थ्री, तो माइनस v बाई in the following common emitter configuration, an NPN transistor will be the with the current gain beta is equal to 100 is used। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू जो होती है हमारी वो हो जाती है IC बाई IB इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो हमारा जो IC होगा, कैपिटल IC हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई 10 के पावर थ्री इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस फोर। ये कलेक्टर करंट हो जाएगा हमारा। और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल IC इंटू आर नॉट
इससे हमें मिलेगा 10⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ क्योंकि हमारा 10⁴ रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे 10⁻⁻⁴। कैपेसिटर जनरली इसलिए लगा दिया जाता है ताकि स्टेबल हमें मिले फाइनली जो मिल रहा है करंट कलेक्टर पे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 वोल्ट। Hmm, 1 volt. After 2 days, the activity of a radioactive sample is 6,000 dps. The activity reduces to 3,000 dps after another 140 days. The initial activity of the sample is, ठीक है, तो यहाँ से दोनों वजह साफ हो जा रहा है कि हमारा हाफ लाइफ टाइम जो है वो 140 डेज है, 140 डेज है। तो आफ्टर 280 डेज 6,000 dps था, तो इसके 280 दिन पहले कितना हो जाएगा, तो 2⁵ इंटू 6,000 dps इक्वल 24,000 dps। चौथा ऑप्शन। The conductor is carrying a current I. The magnetic field intensity at the point O, which is common center of these 3 arcs. कितने आर्क्स हैं? एक। अच्छा, जो ये हमारे अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइंस जो जिनको एक्सटेंड करने पे हम उस पॉइंट पे ही अगर मिल जाएं तो वो उसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो 0 होता है। इसीलिए इस पार्ट से, इस स्ट्रेट लाइन से कुछ नहीं मिलेगा, इस स्ट्रेट लाइन से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे कि कितने हमको आर्क से बस देखना है, इस आर्क से, दूसरे आर्क से, तीसरे आर्क से। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर जो होता है ड्यू टू स्मॉल आर्क, वो हो जाता है हमारा μ0I/4πr इंटू थीटा। थीटा हमारा यहाँ जो एंगल है, जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो है। तो आर्क 1 की वजह से, आर्क 1 हमारा 3r के डिस्टेंस की दूरी पे है, तो μ0I/4π, μ0I थीटा बाई 4π इंटू 3r माइनस k कैप डायरेक्शन में। अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो फिर हमारा फिर तो आर्क 2 की वजह से आएगा वो μ0I थीटा बाई 4π इंटू 2r की कैप डायरेक्शन है, पॉजिटिव की कैप डायरेक्शन में, क्योंकि इंटू द प्लेन है। और फिर तीसरा वाला जो है वो μ0I थीटा बाई 4π r, ही डिस्टेंस पे माइनस k कैप। तो अगर इन सबको ऐड करने हैं तो ये आ जाएगा 3 6 + 2 - 3 6 + 2 - 3 5 का फैक्टर ऊपर आना चाहिए, 5 पहला। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इसी तरह मतलब लाइक पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ कोएफिशिएंट देख के भी ऑप्शन टिक मार सकते हैं। An electron of mass m and electric charge E is accelerated by a potential difference of V. Then it enters in a magnetic field B perpendicular to the magnetic field lines. Radius of the circular path formed by the electron is an electron of mass m and electric charge E. ठीक है, is accelerated by a potential difference of V and then it enters a magnetic field B. अच्छा ठीक है, तो हमें रेडियस का और टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए मैग्नेटिक ये मैग्नेटिज्म में। तो आर की जो रेडियस की वैल्यू आती है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड, आर इज इक्वल टू mv/eB। और जो टी की वैल्यू होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो 2πm/qB। क्यू यहाँ पे चार्ज है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और एम हमारा मास है, 2πm/qB। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ईवी के बराबर, क्योंकि उसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए हैं, तो इज इक्वल टू ½ mv²। फिर यहाँ से हम लोग
वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2 EV बाई ME का अंडर रूट और R इज इक्वल टू MEV बाई EB हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रेडियस की वैल्यू निकाल दिए, टू अंडर रूट 2VME डिवाइडेड बाई EB स्क्वायर, 2VME बाई EB आई गेस सेकेंड है। A pipe of length 1.5 meter is closed at one end, is filled with gas and resonates। अरे यार ये तो आता ही नहीं है ना, ये इसको बार कर लेना चाहिए। ऐसी बार में काफी सही दिया हुआ है, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज वगैरह ये रहेगा अभी तो। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अच्छा ये तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मेंस रिपीट करता है ये। तो फोर्स की 100 यूनिट है। तो एफ जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो हमारा ML/T-2 होता है। लेंथ हमारा L है जो कि 10 मीटर है, T हमारा टाइम है जो कि 100 सेकेंड है। अगर L और T को उसमें पुट कर दें ML/T-2 इक्वल टू 100 में, तो यहाँ से हमारा मास की वैल्यू मिलेगी 10 इंटू 10 के पावर माइनस 100 इंटू 100 के पावर -2 इज इक्वल टू 100। M की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 के पावर 5 है ना। In a photoelectric effect experiment, stopping potential charge changes by 30 volt. ठीक है, if we change the frequency of the radiation, the magnitude of change in the frequency is okay। तो फोटो इलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का, वो जाता है कि EV नॉट किस पोटेंशियल से इसको एक्सेलरेट किए हैं इज इक्वल टू H म्यू फ्रीक्वेंसी, और जब स्ट्राइक कर रहा है ये -H म्यू नॉट हमारा वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा और अगर हम दोनों साइड को E से डिवाइड कर दें तो V नॉट की वैल्यू हो जाएगी H/E म्यू माइनस H/E म्यू नॉट। M की वैल्यू हमारी M करके करेंगे, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा हमारा E/H इंटू डेल्टा इन चेंज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करना, डेल्टा V नॉट। तो ये हमारा जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 के पावर -34 इंटू डेल्टा V नॉट जो हमारा वो 30 है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा 5, 1.6 इंटू 5 8 इंटू 10 के पावर 15 इंटू 10 के पावर 15 ऑप्शन। यूनिफॉर्म लेंथ, ठीक है, तो a uniform rod of length L is free to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis through B. The rod begins rotating from rest from its unstable equilibrium position when it has turned to an angle theta. Its angular velocity omega is given by okay। तो जब ये टर्न कर चुका रहेगा उतना, तो उसमें जो थीटा की वैल्यू होगी उसकी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस H डिवाइडेड बाई म्यू 2। और अच्छा हाँ, यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो एक्चुअली है कि जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो डेल्टा P डिक्रीज इक्वल टू डेल्टा K इंक्रीज, और डेल्टा P जितना डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है हमारा -mg/2, मतलब डिक्रीज अगर ले रहे हैं तो माइनस हटा देंगे, डेल्टा P डिक्रीज इक्वल टू mg/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग रोटेशनल फॉर्मूला यूज करते हैं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ml²/3 क्योंकि एंड से रोटेट कर रहा है, और अगर बीच से होती, मिड पॉइंट से होती तो वो ml²/12 होता। तो हाफ इंटू ml²/3 डिवाइडेड ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर
इज इक्वल टू mg/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा √6g/i sin थीटा/2, 6g/l sin थीटा/2, तो 6g/l sin थीटा/2 सेकंड ऑप्शन आई गेस सर। देखो मैंने कहा था ना कि ये आ सकता है, दो दो क्वेश्चन आ जाता है इसीलिए कभी कभी। तो बूलियन अलजेब्रा और ये सर्किट एनालिसिस, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करता है, एक मैथ्स का क्वेश्चन भी आ जाएगा और फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में, लॉजिक गेट्स में। तो इसको कर सकते हैं, तो पहले और वाले को करते हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा यहाँ से। अब ये एंड होगा a के साथ, तो a डॉट a प्लस बी, तो a डॉट a ब्रैकेट खोल दिए, तो a डॉट a प्लस a डॉट b, a डॉट a की वैल्यू a ही हो जाएगी, तो a प्लस a डॉट b कर दिए। अब a प्लस a डॉट b में a को अगर कॉमन ले लें तो 1 a डॉट 1 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। a को कॉमन लिए तो a डॉट 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी अब b पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि b चाहे कुछ भी हो, 0 है या 1, 1 प्लस बी हमेशा 1 देगा, तो a डॉट 1, तो ये हमेशा ए आ जाएगा, ए पे डिपेंड करेगा।